Hello, check. Hello, 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 check. Of the Mahatma, and after that we all know him because of his role Vyomkesh Bakshi. Only 33 episodes of 33 stories, and the scenario of detectivity changed entirely. We have found many detectives after that Vyomkesh Bakshi. Youth of that generation and this generation also feels like being a super detective after that. Is this series in association with Chitnavis Center, and we'll wait for 5 minutes and then we'll start the session. In the 14th session of Knowledge Series, here in this Chitnavis Center, we organize this session. Today we have Mr. Rajit Kapoor with us. On behalf of SGR Knowledge Foundation and Raisoni Group, I request Dr. Vivek Kapoor to please welcome Mr. Rajit Kapoor with a memento. Without the support, the forum will be open for Q&A. It will be open for 15 minutes only, so I request audience to please restrict the questions. And it should not be like a discussion panel after the session. It's a small request, please. Thank you, and I hand over the session to Mr. Rajit Kapoor. I'd rather talk to you informally and share my thoughts with you. I think that would be far more endearing for me. कल रात को बैठ के मैं सोच रहा था, सारे बैठ के इतने सारे नोट्स बनाए, ये भी मुझे कहना चाहिए, ये भी कहना नहीं, ये this is not interesting, वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, ये नहीं बात कर रही है, और अब वो आधे सब ख्याल कहीं उड़ गए हैं। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मेरे जहन में है। 1963 में एब्राहम लिंकन सेंटर के आगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा, I have a dream, and that led to the biggest protests in America at that time. 1963 में Beatlemania took over the world with one of their most famous songs, I Want to Hold Your Hand. 1963 में the first Bond film was released, Dr. No, and since then James Bond has been entertaining us. 1963 में the country Malaysia was born. August 1963 में the smiley, those of you who are very familiar with emojis and WhatsApp, was first invented by Harvey Bell. और उसी 1963 अगस्त में कहीं मैंने पहली बार अपनी आंखें इस दुनिया में खोली। इन अमृतसर, इन पंजाब, तो पंजाबी खून जो है ना मेरी रग रग में है, इसलिए मैं कभी कभी अपने दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं। I was only 2 when my parents, mummy and papa, moved to Bombay, जिसे कई लोग अंधेर नगरी कहते हैं। लेकिन उस शहर की एक अपनी खासियत है। It's one of the only 2 cities in the world other than New York that doesn't sleep. हम रात को 2 बजे भी ट्रैफिक जाम में फंसे पड़े होते हैं कभी-कभी। बट उस शहर की अपनी एक जागृति है। तो अगर उस पंजाब के खून ने मुझे
मेरे दिल से सोचने की शक्ति दी है, उसी मुंबई ने मुझे अपनी रेसिलियंस, अपनी दृढ़ता, अपना दृष्टिकोण दिया है। तो वो अजीब मिश्रण हूं मैं। I studied in an Anglo-Scottish school, इसलिए शायद मेरी अंग्रेजी साफ है। और बचपन में मैं हिंदी गाने खूब सुनता था, इसलिए मेरी हिंदी भी साफ है। रात को तकिए के नीचे वो अपने ट्रांजिस्टर होते थे, लाइट्स ऑफ होने के बाद बिना का गीतमाला, इंस्पेक्टर ईगल, ये तभी रात को 10 बजे प्रोग्राम्स होते थे, तो वो मेरे सराहने के साथ ही रहते थे। तो मेरी हिंदी टीचर को ताजुब होता था कि ये बॉम्बे में रहते हुए तुम्हारी हिंदी इतनी साफ कैसे है। मैंने कहा हिंदी सॉन्ग्स, सो फुल क्रेडिट टू देम। अब बचपन में क्या होता है, किसी बच्चे को शाबाशी देते हैं तो उस बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। When you appreciate and applaud a child of 6 or 7, he gets encouraged. Because I was trying to think that why ये acting का कीड़ा कहाँ से आया मुझ में? And when I started thinking about it, and you see I see my niece, my nephew, and my friends, and anything you encourage a child with, he wants to do it more because he is being appreciated, or she. And somewhere from the age of 6, I think, मतलब वो खिलौना होता है ना, बस वो चाबी घुमा दो तो नाचने लगता है। तो मेरे कुछ ऐसा ही था, इसको बस चाबी मार दो तो ये नाचेगा, गाएगा, कुछ भी करेगा, प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएगा। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, because as far back as I can remember, I have a photograph of myself at the age of 6 playing the King of Hearts. So that takes me back to standard 1 kind of thing. And somewhere वो कीड़ा जो है स्कूल में और इस बम्बई शहर में नर्चर होने लगा। राइट इन स्कूल जो असेंबली प्लेज वगैरह होते थे, I started writing also in school, छोटे छोटे चुटकुले और असेंबली प्रोग्राम्स के लिए हम लिखते थे अंग्रेजी में, हिंदी में। And when television first happened in Doordarshan in Bombay, then when I was in the 5th and 6th standard, तो तब ही टेलीविजन पर आने का मौका मिला। There used to be a program called खेल खिलौने जब हम छोटे थे। Most of you won't know that at all. But I remember doing 2 such episodes in खेल खिलौने। One as Mr. Homework, तो फिर उसके बाद पूरे 1 साल तक मुझे Mr. Homework बुलाते थे। फिर एक था डॉक्टर मोहम्मद पांडुरंग फर्नांडिस, जो 3 बेवकूफ डॉक्टरों की कहानी थी। तो टेलीविजन की शुरुआत भी 10-11 साल की उम्र में हो चुकी थी। बट अगर मैं कहूं कि स्कूल में वो टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर शशि कपूर, हु इज नो मोर। 9th स्टैंडर्ड में हमारे एनुअल स्कूल प्ले में I had the opportunity to do a play called Midsummer's Night's Dream, और उस एनुअल फंक्शन में शशि कपूर जी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। So they asked him to come on stage and give the trophy for the best performance. और उस ट्रॉफी को मेरे हाथ में थमाते हुए उन्होंने मुझे मेरे कान में कुछ फुसफुसाया, और शायद वो जो छोटे से बड़े आम शब्द थे वो हमेशा मेरे साथ रहे। All he said was, I would really like to see you come up like this. मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ो। कई बार मैंने उसका जिक्र उनके साथ किया जब उनसे मिला, but he had absolutely no clue. He didn't even remember coming there. But for me, for that child in the 9th standard, it meant the world. And I think that's the first time I thought that acting भी की जा सकती है. I think the seeds was sown for the first time in the 9th standard in my mind that I could maybe take this on as a profession. Of course, when I began to share those thoughts, तो घर पे तो तहलका मच गया था। By the time I was in the 10th and 11th, my father was horrified. He said, शक्ल देखिए तुमने शीशे में, हैंगर लगते हो, एक्टर बनोगे? And later on, mom would try and tell people, ये पता
पता नहीं क्या फतूर है इसके दिमाग में, जरा कुछ कहो इसे, छोड़ दे, सब पता नहीं क्या करता रहता है. But I think those decisions became more and more firm in college, although I did commerce at Sydenham College and graduated. In commerce, business family thi. Business, trade was what was meant to be and maybe still there in my genes, but I think मैं अपने हटपन से दूर नहीं हटा. तो जब हम रिहर्सल्स करते थे, रिहर्सल 7 बजे के बाद होती थी, मेरी माँ परेशान होती थी. रात को तो उल्लू जाते हैं, जागते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही रात को कौन सी रिहर्सल होती है, दिन में क्यों नहीं होती. But it was very difficult to explain that those who were even doing professional theatre at that time when I was young were all working people. So they would finish office at 6:30, and then rehearsal would start at 7, up to 10, 11, and sometimes even midnight. तो घर आते थे तो खाना ढका हुआ होता था. सुबह सुबह मम्मी मुझसे बात ही नहीं करती थी, पता नहीं कितने बजे आते हैं, आवारा बन गए. तो बड़ा मुश्किल था समझाना. आज माहौल अलग है. आज लोगों की मम्मियाँ मेरे पास आती है, सी माय सन इज सो गुड लुकिंग, प्लीज मेक हिम एन एक्टर. ऐसा नहीं होता. But in college, in those 3 years, I spent a lot of time in the performing arts, whether it was the planning forum, the dramatic society, the music society. कॉलेज के समय के बाद जो वक्त था वो हमेशा इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ ही गुजरता. अब पॉकेट मनी की जरूरत थी, so I started helping my father little bit in the business, writing petty cash vouchers in his office कि महीने में 1000-2000 आ जाएं तो फिल्में देख सकते हैं, आना जाना, आइसक्रीम खा सकते हैं. तो वो सिलसिला शुरू हो गया था कॉलेज में. बट जो रंगमंच की दुनिया का जो नज़ारा था वो मुझे बांधे हुए था. एंड इवन आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द थिएटर. तो उसकी जो रूह थी जो मुझ में बस गई थी, उसे निकालना बहुत मुश्किल था, और वो आज भी मेरे रग रग में है. I think I would say that after college I did join my father in the business, and therefore for 20 years मैंने business भी संभाला. सिर्फ तब ऐसी बात थी कि मेरे लिए 1 साल में 1 नाटक, 1 फिल्म और business संभालना, and I was happy. Another turning point for me would have been the first time I faced the film camera for Mr. Govind Nihalani in a Doordarshan docudrama called Jazeera, I think in 89-90. After college in 85-86, I did a lot of plays, and television had also started coming with a lot of good programs. So I did, I think, Ghar Jamai at that time in 86-87. And then another turning point, 1991, was Byomkesh Bakshi. But I would still say 92 for me was a game changer. Because 1992 में हमने अपनी थिएटर कंपनी रेज प्रोडक्शंस को जन्म दिया. 1992 में मिस्टर श्याम बेनेगल ने मुझे अप्रोच किया मेरी पहली फीचर फिल्म के लिए, सूरज का 7वां घोड़ा. हम स्टेज पर अपना एक नाटक लव लेटर्स परफॉर्म कर रहे थे. बैक स्टेज आए शो के बाद और बस मुझसे हाथ मिला, कहा मैं आई विल कॉन्टैक्ट यू टुमारो. हाँ, आम चीज़ है, तो ऐसे ही बोलते हैं सब लोग. बट ही डिड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ही सेड कम एंड मीट मी. और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, कहा ये पढ़ो और मुझे बता दो अगर आपको ये करना है या नहीं. तो घर जाके मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा तो लीड रोल है. वो तो मुझे कहते हैं अगर तुम पेड़ बन के खड़े रहो तो आई वुड हैव अग्रीड, तो लीड रोल है. तो आई वेंट, आई सेड सर इट्स द लीड रोल. ही सेड यस, will you do it? He said I just want to see your combination with the 3 women. For the first film I had 3 leading ladies with me, and till today I think all 3 of them
are probably the finest actresses we have in the country. Pallavi Joshi, Rajeshwari Sachdev, who started her career with Marathi films, and Neena Gupta. And I think I'm so lucky, I'm so fortunate that I had the chance to work with all three of them in my very first film. जहां तक मिस्टर बेनेगल का सवाल है, अब तो I have done all his films since 1992. अब अगर वो फिल्म मेरे बिना करेंगे तो शायद मुझे बुरा लगेगा. The only time I almost didn't do his film was Welcome to Sajjanpur, because he called me. He says, "Rajat, इसमें कुछ रूल ही नहीं है तुम्हारे लिए. वो क्लर्क का कोई एक सीन है कुछ ऑफिस में." I said, "Sir, I'm flying down. I'm coming." I flew the next day to Hyderabad. I said, "You can't make now a film without me. कहीं भी खड़ा रहूँगा मैं पीछे." So I did that one scene. He has been instrumental in many ways in shaping my mind as far as films are concerned. And what I always keep with me, which I have learned from such a legend, is humility. आज तक पिछले 60 साल में उस आदमी ने एक बार नहीं कहा कि मैंने बेहतरीन फिल्म बनाई है या मैंने कमाल किया है, कभी नहीं. हालांकि वो खुद ही इस कमाल की एक मिसाल है. For me, that's a great learning. As far as theatre is concerned, since our company was formed in 1992, there were 8 of us as partners, now we are 3. But we have tried to keep the flag flying. कि theatre नहीं छोड़ना. आप पूछेंगे क्यों? Because इसी theatre ने मुझे discipline सिखाया. इसी थिएटर ने मुझे टीम वर्क सिखाया है, जो मैं आज तक अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ. We talk about team work, or let's say if you're playing hockey or cricket or any group activity, then it's not the individual, it's the team that matters. And that is what automatically the theatre teaches you. Because you are working with a group of people, you can't work in isolation. And even if it's a small thing of basic discipline, even in terms of respecting someone else's time, then I am happy and proud to say that my theatre has taught me that. इसे तो छोड़ना ही नहीं. Yes, as an individual, I will share with you in some time on a personal level what it means to me. Another big question that used to bother me at first was that I'm not a trained actor. तो बीच में कहीं मैंने नसीर साहब, who's my senior, मैंने उनसे कहा, नसीर भाई अभी I feel I don't have any formal training, so maybe I should go and attend some school for at least 2 years or something. He said, नहीं बस बहुत हो गया, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने गिर के मिस्टेक्स करके जो तुमने प्रैक्टिकली तौर पे सीखा है वो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता. अब रहने दो. And I did follow his advice. Although I do feel that early on in my career, had I gone for any formal training, then I would have maybe learned what I did in 10 years, in 2 years. I don't know. ये सवाल जवाब हमेशा मेरे मन में उठते रहते हैं. And sometimes I find it difficult because I don't do many workshops when I have to share this with a lot of other people. I find it difficult to explain because sometimes it's very important to capture the core. हम जो मुद्दे की बात करते हैं, I'll come to that in the whole acting scenario. So उस टाइम पर जब मैं कॉलेज से निकला था, तो मेरे लिए वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी था. उस मेरे ऑफिस के लिए, मेरे थिएटर के लिए, मेरे फिल्म के लिए. अब 12 साल से बिजनेस तो मैंने बंद कर दिया, पापा को कहकर कि ये तो चल नहीं रहा है, ना कुछ प्रॉफिट है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा. सो नाउ इट्स शो बिजनेस फुल टाइम. एक्टिंग के बारे में कई लोग पूछते हैं क्या है.
I would say on a very basic level, as an actor, every actor is a communicator. You have to communicate on a very, very basic level. चार चांद बाद में लगते हैं, but are you able to put across what you want to say or what you want to make the other person feel? And in that sense, for me, the best examples of a communicator are teachers. अगर आपका अध्यापक अध्यापिका अगर वो अपने सब्जेक्ट के बारे में आपसे उस तरह से चीज शेयर ना कर सके ताकि वो आपके पास आप तक पूरी हद तक पहुंचे, then he's not a good teacher or she's not a good teacher. To an actor, in terms of his communication skills in various ways, is also in that category. अब वो communicate कैसे करता है, किन चीजों की मदद लेके करता है, वो हर एक पर निर्भर है. There are different schools of thought, there are different perspectives to look at it, but essentially मेरे हिसाब से वो एक्टर कम्युनिकेटर है. एक्टर की एक खूबी है कि in our profession I think we are privileged that even at the age of 70 and 80 we are allowed to be childlike and like a child. Just as a child is playing, we as actors play. And in searching for that truth, in searching for that honesty in our performance, we are playing. And today I am so happy that I have not lost that. I would be very upset if that happened. मेरी माँ तो अभी कहती, क्या तुम्हें हो गया है, 50 साल के हो गए हो, बिहेव करते हो जैसे 15 के हो. ऐसा नहीं मामा, मैं 15 का नहीं, मैं तो 5 का हूँ, क्या बात कर रहे हो. तो ये बहस हमेशा होती रहती है. But I'm happy I can be 5. I'm very glad about that. एक्टर को इस कम्युनिकेशन द्वारा, in order to want to communicate, and in that process of communicating, there is a thrill that is attached to it. So what is it that makes that actor seek out this process of communication? वो क्या है? मेरे लिए अगर आप पूछें तो पर्सनली, जब वो पहली स्क्रिप्ट आती है, उसका जो पहले पन्ने की जो खुशबू है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. To open that first, sometimes when you read a new book, that first page you open, that smell of that new paper, these are the little things that actually make it. Or that first scene that you read, the first scene that you perform, whether on stage or on film, the first time you meet new people in a unit, the opening night, the first time you step on that stage with a new character, the first time you witness an entire performance, the first time you learn that speech by heart. These little moments जो एक चिंगारियों की तरह है ये, जिससे वो आग की गर्माहट निकलती है मेरे लिए. On a higher level, अगर मैं अपने आप में झांक कर देखूं तो I think for an actor, खास करके for a stage actor, acting per se for me is like a very high form of meditation. और ये किसी वर्कशॉप में मैंने इसको ब्रेक डाउन करके उन विद्यार्थियों को समझाया था कि एक्टर को लाइनें लर्न करनी है, एक्टर को दूसरे एक्टर की लाइनें भी पता होनी चाहिए, एक्टर को कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, एक्टर को अपना मार्क है, लाइट कहाँ से लेनी पता होना चाहिए, साउंड कौन सा आने वाला है उसे पता होना चाहिए. He has to be aware of the audience. He has to be aware of कहाँ उस सीन में चेंज आने वाला है. He has to be aware of his costume. He has to be aware of
वो पर्सनल प्रॉप जो उसका है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो। मैंने आपको सिर्फ 10 कही है, अगर मैं लिस्ट वो ढूंढूं तो मस्ट बी एटलीस्ट 30-35। तो आप सोचिए वो एक्टर इतने लेवल्स पर सोचने पर मजबूर है। सो देन यू नीड व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस। ओनली इफ यू आर एबल टू अचीव that concentration on all those level, on all those things, can you, जिसे हम, आप परफेक्शन कहिए, मैं बारीकी कहता हूं, उस परफॉर्मेंस की बारीकी तक आप पहुंच पाए। तो मेरे लिए अब परफॉर्मेंस और ये बारीकियां स्टेज पर बढ़ जाती हैं, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग बैक। कोई टेक नहीं है जो आप कह सकते हो मैं ये वर्ड भूल गया फिर से करते हैं, नहीं, वो दोबारा नहीं आता। वो पल जो है, वो मोमेंट जो है, वो दोबारा नहीं आता। आप उसे ढूंढते हैं, उसे निखारते हैं, लेकिन उसके लिए वो अलर्टनेस, वो कंसंट्रेशन ऑन ऑल दीज सो मेनी लेवल्स जरूरी है। Therefore for me it's a meditative high। मेरे लिए वो पूजा है, मेरे लिए फिर वो रंगमंच जो स्टेज का प्लेटफॉर्म एक मंदिर की तरह बन जाता है। अगर आप ध्यान में हो या ध्यान मग्न हो और आपको कोई पूजा में या जब आप योगा करें वो डिस्टर्ब करे तो खलल सी मच जाती है। एंड दैट इज वाई ये जो फोन्स बीच में बजते हैं परफॉर्मेंस के, मेरा दिल करता है एक जूता निकाल के मुंह पे मारूं अगर किसी का फोन बजे या फोन। डोंट गो टू वॉच परफॉर्मेंसेज और लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल। दिस इज वन बिग प्रॉब्लम ऑफ सोशल मीडिया एंड द फोन्स टुडे। वो फोन किसी चीज के लिए है, उसकी जरूरत को वहीं तक सीमित रखिए, बट अगर वो आपके कम्युनिकेशन में बाधा बन के पैदा हो जाए तो फिर वो किस काम का? Then you are not able to absorb the good energy of what you are being exposed to. Today families are sitting having dinner at home और पांचों लगे हुए हैं, क्या है आज, क्या है, तुम क्या दिन कैसा है, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, ओके बाय, चलो गुड नाइट। I see it। मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, अपने बहन के घर में सारे लगे हुए हैं, तो ऐसे मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, सब फोन पे लगे हुए हैं, ओके बाय बाय, सी यू, आई लेफ्ट। बट वी फॉरगेट टू थिंक दैट, सॉरी मैं थोड़ा किसी और दिशा में निकल गया था। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द होल meditative high of a performance, and that is what I refer to as magic। हम कहते हैं किसी परफॉर्मेंस में या आपको कुछ लगा तो यार कुछ था वो परफॉर्मेंस में, वो मैजिक, जो आपको मैजिक महसूस हुआ वो उसी, मेरे हिसाब से वो उसी कंसंट्रेशन, अक्यूट मेडिटेटिव कम्युनिकेटिव क्वालिटी का नतीजा है और कुछ नहीं। इट इज वेरी सिंपल। इवन मैथमेटिक्स, इनपुट इक्वल्स आउटपुट, उसमें कोई, हम कहते हो ये चीज निखर के नहीं आई, नहीं, जितनी दिल लगी से, जितना समय या जितने स्किल से आपने उस चीज को पिरोया है उसका नतीजा वही होगा। तो उसमें जो दिल और दिमाग का जो मिश्रण है, इट हैज टू बी सो हाई फॉर इट टू अचीव दैट काइंड ऑफ मैजिक। ये मेरा मानना है। यू मे हैव अ डिफरेंट way of looking at it or any other performer or actor perhaps, no issues। ये मेरा मानना है। फिर बात आती है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने किया है, फेम, सक्सेस, मनी, lot of people have questions, बड़ी उत्सुकता होती है। I don't know, honestly, I don't know। But when a youngster or a 25-year-old comes to me and I ask him कि भाई तुम्हारा aim क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और जब वो नौजवान कहता है आई वांट टू बी फेमस, तो मुझे बड़ा दुख होता है, बिकॉज दैट कैनॉट बी एन एम, दैट कैन बी अ रिजल्ट, बट इट कैनॉट बी समथिंग टू एम फॉर। एंड दैट इज वन थिंग दैट रियली बॉदर्स मी टुडे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। Because I find that the shortcuts that they want to take may not take them to that way, because they can't be shortcuts। आप builders
की बात कर लो, जो बिल्डिंग है, अगर उसमें वो सही ढंग का मिश्रण और सीमेंट और चूना और ईंट और पत्थर नहीं मिला हो, वो बिल्डिंग मजबूत हो ही नहीं सकती। तो लंबे रेस का घोड़ा अगर किसी को होना है किसी भी प्रोफेशन में, शायद ये लागू हो, तो देन दे कांट बी शॉर्टकट्स, देन यू हैव टू हैव द गट्स टू बी एबल टू टेक दैट लॉन्गर रूट। स्ट्रगल, कई लोग स्ट्रगल की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रगल थी वो बहुत अलग थी। आज नौजवानों की स्ट्रगल शायद अलग है। आई वॉज लकी, मैं खुशनसीब था कि मेरे सर पे छत थी, मुझे ये चिंता नहीं थी कि मेरा खाना कहाँ से आएगा और मैं सोऊंगा कहाँ। हाँ, स्ट्रगल थी काम की कि मुझे जो काम करना है फॉर माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, वो मुझे ढूंढना है, वो आसान नहीं था। एंड अगेन उसका जो श्रेय है वो भी थिएटर को जाता है, बिकॉज अगर गोविंद निहलानी, अगर श्याम बेनेगल मुझे स्टेज पर नहीं देखते तो मुझे ये रोल्स, इस तरह का काम ऑफर भी नहीं करते। तो ये क्रेडिट भी मेरे थिएटर को ही जाता है, उसी लगन को जाता है। आज के तौर पे जो स्ट्रगल है उसी 20 या 25 साल युवा युवती की, वो अलग इस प्रकार है कि इस समय जो सप्लाई है वो शायद 50 गुना ज्यादा है डिमांड से। हमारे टाइम पे एक्टिंग को नीची निगाहों से देखा जाता है, अरे एक्टर बनना है, क्या है, नहीं करना क्या है, उसको साइड पे करो, लेकिन एक्चुअल प्रोफेशन क्या है तुम्हारी। अब वो नहीं है, अब बड़े गर्व के साथ माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी एक्टर है। सो दैट टैबू इज नॉट देयर, वो दीवार नहीं है। लेकिन उसका जो माइनस पॉइंट है कि द डिमांड इज सो मच दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल, बिकॉज इन आवर कंट्री वी डोंट हैव अ सिस्टम और अ स्ट्रक्चर फॉर द एक्टर। वेस्ट में, चाहे वो यूके में और यूएसए में हो, तो जैसे यहाँ डॉक्टर के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रक्चर और दैट प्रोसीजर। यू कैंट जस्ट से आई विल बिकम अ डॉक्टर, अरे, बट यू कैन से दैट आई विल बिकम एन एक्टर, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ धोखेबाजी है इसमें, ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आप कोई भी हो, it will not work. You have to have that dedication on one side, and yes, बाकी अभी आपके माथे पे जो लिखा है कि कौन सी सुई कहाँ पे लग जाए, और if you are there at the right place at the right time, yes, it does matter. It does matter. So, in that sense, it's an indigenous, unpredictable profession. तो फिर योर फोरबेरेंस और डटे रहने की क्षमता भी होनी चाहिए आप में। अगर आप में वो मनोबल नहीं है तो प्लीज देन टेक अ 9 to 5 जॉब एंड बी हैप्पी एंड सिक्योर। इफ यू डोंट हैव दैट माइंडसेट टू डील with the uncertainties of life in this profession, then this profession is not for you. So it's not without reason that many people say कि एक्टर को थोड़ा पागल होना पड़ता है। शायद कुछ हद तक वो ट्रू हो, I don't know, but you have to have that madness in you then to want to continue. I know of friends who say I don't want to do anything else. जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पता भी नहीं आपको अगले दिन आपका खाना कहाँ से आएगा, but it's I don't want to do anything else. Then you have to have that madness to continue and believe in yourself. If you have that, great. It will work for you on a personal level. But I always feel you also have to have the practicality. So if there are friends of mine who have a family and 2 children to support, then ये पागलपन फिर काम नहीं आता भाई। आपके पास 2 बच्चे हैं, आपको सपोर्ट करना है, you have to think for them as well. Then you can't think for yourself. So you need that balance, as I would put it. On another personal level,
I know this could be one of the questions because ये अक्सर मुझे पूछा जाता है कि what excites you into taking up a role. अगर वो चीज़ कुछ ज़्यादा मुझे आसान लगे तो शायद मैं उसे हाथ न लगाऊं. अगर मुझे लगे कि this allows me to stretch myself, वो जैसे रबर बैंड होता ना, मुझे लगे कि मैं अपने आप को थोड़ा और खींच सकता हूँ चारों साइड से, then I would probably do it. अगर मुझे लगे इसमें कुछ डिफिकल्ट है, ये तो शायद मैं कर ना पाऊँ, तो मैं करूँगा. And therefore, I think Robert Frost's lines may, in a way, sum up what I feel for myself as an actor. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और अगर उसे हम अपनी हिंदी फिल्मों के गानों के जरिए सोचें, तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. I would rather I share the rest of the time with you and not restrict it to 15 minutes to open this discussion, rather than कि मैं अपने आप के बारे में ही बकबक करता जाऊं. तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय मैं आपसे बातचीत करूं, if that's okay. Yeah? yes. तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपके लाइफ के जो हम जैसे अपकमिंग थिएटर पर्सनालिटीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट दिए हमको. मेरा ये सवाल है कि आजकल थिएटर में जो भी आता है उसको एक्टर ही बनना है. मगर थिएटर का एक्टिंग एक पार्ट है, टेक्निकल साइड्स भी बहुत ज़रूरी होती है बिल्कुल की, मगर उस पर कोई आजकल तवज्जो नहीं देता. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका. जो भी कोई हमारे साथ जुड़ता है तो मैं उनको पहले उसमें जुड़ा देता हूँ. ये दो चीज़ें करता है आपको, हर एक नज़रिया जो पहलू है स्टेज का और वर्किंग एज अ टीम सिखाता है. और दूसरी बात ये है कि अपने घर में झाड़ू मारने में कोई शर्म नहीं है, और ये मैं आज ही मानता हूँ. मेरी टीम इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उसकी अहमियत ये है कि जो बैकस्टेज करते हैं, जो टेक्निकल्स में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आपकी लाइट ऑपरेट करता हो, आपका साउंड ऑपरेट करता हो, या पीछे आपका सामान उठाता हो, आप उनके बिना शो नहीं कर सकते. एक्टर उनके बिना जीरो है. इसलिए जब हम ट्रैवल करते हैं, कई इवेंट वाले कहते हैं सर आपके लिए ये एयर ट्रैवल है और आपके क्रू वो दूसरी उसमें से आएंगे, तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ. मैं सर थैंक यू, मेरे लिए वो क्रू उतना ही ज़रूरी है. अगर मैं बाय एयर जाऊँगा तो वो बाय एयर जाएंगे, नहीं तो आप किसी और को कहिए शो करने के लिए बाय बाय, थैंक यू. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका जुड़ा हुआ सवाल है कि हाउ डू यू इनकलकेट दैट फीलिंग टू डू बैक स्टेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट यू नो, काफ़ी एक्टर हैं जिन्होंने पहले बैक स्टेज करके चीज़ सीखी हुई है, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स. Whether it is Ranbir Kapoor or anybody else, and they have all worked. Even Vicky Kaushal, he did backstage with me for one play, and then went to assist Anurag Kashyap, and today. So your vision, your thinking becomes wider. You are able to understand things from so many other perspectives. But I agree that it is difficult. Nobody wants to really do production. There will be very few people. Technical side पे फिर भी आपको मिल जाएंगे लड़के लड़कियां who are interested in learning about lights and sound. But doing backstage or doing production, as we call sometimes, is a thankless job. And therefore, I have utmost respect for my production controller. कभी कभी हम कहते हैं कुत्ते का काम वो करता है और तालियां हमें मिलती हैं, उसको बेचारे को गालियां मिलती हैं. बिकॉज कई चीज़ अगर बिगड़ जाए या कुछ हो तो सारा इल्ज़ाम उस पर है.
और एक्टर को तो वैसे भी he is in the light, and what about that person behind the scenes? He is the person that we should learn to respect. I think it's first a question of attitude, sir. When we learn to respect those who are behind the scenes, उस बंदे को वो रिस्पेक्ट अगर आप दोगे ना, तो उस प्रोफेशन में आप देखो और लोग जुड़ जाएंगे। उस प्रोफेशन को जो बंदा बैक स्टेज काम करता है, जो कुर्सियां उठाता है, जो आपके टेबल की मार्किंग करता है, उसे हम रिस्पेक्ट नहीं देते। ये प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। यस मैम। Sir, my son released overnight. So he was totally shattered. Ki why, what, no reason, nothing. Is it still continuing, and if so, what could be done? There's nothing you can do about it. As I told you, one reason this is part of our profession. आप जो कह रहे हैं मेरे साथ रात में है, मुझे शेड्यूल दिया गया है और अगले दिन मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, अरे ये रोल तो कोई और कर रहा है, किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। That happens still today. That happens still today. I think just now, only last month, one of the actresses, I don't know what is it, Taapsee Pannu, she gave a whole interview in the paper saying, I didn't even realize I was out of the film. So if it can happen with somebody who is that popular, and I think she is one of the finest performers to come out of the next generation, then it can happen with your son. They will not give you a reason, and therefore it's very important in this case for your son to understand that this can happen again. But he must not lose heart. Sometimes what happened is when a youngster is at a very impressionable age and is just on those first few steps of understanding the profession, झटका लग सकता है उसको. But then you have to give him that strength to carry on. So it depends how you deal with the situation. If you make him feel that rejection, then that's going to be bad. It's not rejection. That you have to be careful about. I just wanted to ask, like maybe it's a very big word, but isn't there anything like ethics? Anything like? Ethics. At least they ethics. ये तो हम पर है ना, ये तो हम पर लागू है ना. At least they can specify, justify why. No, they won't. क्या करेंगे अब? Unless you are on a contract. So sometimes it is better if you are not sure about what you're getting into to have things written in a contract. That's why we have contracts. But कई बार ऐसा होता है ना, आप भरोसे के साथ काम करते हैं, कई धोखे मिलेंगे इस राह में. Man, that's part of life. You learn and move on. Good evening, sir. Yes, is youngster here? वो just अभी कुछ महीने पहले मैंने फील किया, मैंने प्ले किया था. आपने फील किया? Yes. बहुत अच्छी बात है. ये सबको नसीब नहीं होता है ये मैजिक. If you have felt it, then it's a beautiful feeling. You feel you're on cloud 9. So I hope that you have many more magical moments in your life. सर वो छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ सर. Okay? सर वो प्ले में सबसे ज़्यादा डांट मैंने ही खाया. कोई बात नहीं. थप्पड़ भी मिले होंगे तुम्हें. गालियाँ. गालियाँ. गालियाँ के बाद ही ताली आती है. फिर वहाँ पे मतलब धीरे-धीरे खुद से क्वेश्चन पूछता था, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. जैसे टाइम बीतता गया और Put the mic closer to your mouth so that they can hear what you say. Yeah. जैसे टाइम बीतता गया, धीरे-धीरे जो लोगों का नजरिया है, जैसे इग्नोर करते हैं, हाँ ये प्ले किया कर रहा है, इधर-उधर देखते थे, धीरे-धीरे वो लोग कॉन्सेंट्रेट होने लगे और उनका जो स्टेटमेंट है, यार तू अच्छा कर रहा है. तो जब वो एक्ट हुआ, शो हुआ, तो जो लोगों का एक्सपीरियंस था, मतलब जो देख के जो उन्होंने बोला, that was for me, it was magical moment for me. आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया. So that's good. Because you were able to create that magic because of your power of concentration, then that magic you passed on to somebody else, and that's why they applauded you. Very simple. Yes, sir. हेलो सर, मुझे देख के खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले भी, कुछ माह पहले भी आप नागपुर में आए, तब भी मुलाकात हुई, फिर से आपसे मुलाकात हो रही है और ऐसा आते रहिए, अच्छा लगता है. मुझे एक अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हिंदी फिल्में हैं उनकी अपेक्षा जो प्रादेशिक फिल्में हैं जैसे मराठी हैं या अन्य भाषाएं, वो ज़्यादा सशक्त होते जा रही है. Absolutely. उसका क्या कारण है?
क्या कारण है? बिकॉज वो कहानियां हमारे देश के कोने कोने में घुसी पड़ी हैं और लोग उनको मिट्टी से आज निकाल के उन्हें प्रदर्शित उन्हें कर रहे हैं। पहले किसी में हिम्मत नहीं थी। आज द प्लेटफॉर्म्स आर सो मेनी विद द डिजिटल मीडिया दैट ऑल दीज स्टोरीज, वेदर इट्स इन Marathi, Punjabi, suddenly the regional cinema is so rich that it has left Hindi cinema far behind. मुझसे आप पूछे तो पिछले 10 सालों में मैंने तुम्बड़ से बेहतर कोई फिल्म नहीं देखी। For me, that's a proud moment to be an Indian, that somebody from here has made such a film. And what about the gentleman? Hardly anybody has applauded that fellow for making that film. Shame. Good evening, sir. Yes. Sir, I am C.A. Satish Gupta. Yes. Huge fan of yours. Sir, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था कि हमारी अपब्रिंगिंग चल रही थी जब ये आपका टेलीविजन में अब व्योमकेश बख्शी जो ड्रामा है वो ये हो रहा था। हम बड़े हो रहे थे उस समय, आपको देखते हुए बड़े हुए, वो एपिसोड्स देखते हुए। सर, मैं कमिंग आ रहा हूँ, जब भी हम ऑडिट्स में जाते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन में, सो हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है सर, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, डिटेक्टिव, इट बिकम ए सिनोनिम विद व्योमकेश बख्शी। बट मैं यहाँ कोई ऑडिट या डिटेक्टिव गिरी नहीं कर रहा। मैं उसके लिए बस आपका हार्दिक बधाई, अभिनंदन चाह रहा था, और ये जानना चाह रहा था कि सर उस समय उस किरदार को निभाने के लिए आपने किस तरह की प्रिपरेशन की, मेंटली, फिजिकली। आप हर एपिसोड के एंड में अपने एनालिटिकल माइंड को यूज करते हुए मिस्ट्री चैलेंज मैं नहीं, ब्योमकेश। एक्चुअली मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, इसलिए मैंने ब्योमकेश के बारे में ज्यादा बात नहीं की। बट इसकी खूबी जो थी ब्योमकेश बख्शी की, उसकी कहानियां, उसकी जो स्क्रिप्ट्स थी, जो निर्देशक थे मिस्टर बासु चैटर्जी, उन्होंने ये जो 33 स्टोरीज थी, इनका अनुवाद भी खुद किया था बांग्ला से हिंदी में। और जब मैं उनसे मिला, जब ये रोल मेरे लिए कंफर्म हुआ था, तो उन्होंने ऑल 33 स्टोरीज मेरे को दे दी, ये लो पढ़ो। सब तैयारी से आए थे, इससे सभी कुछ सवाल जवाब है तो पढ़ के नोट करो, बाद में शूटिंग के टाइम पे मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना। अगर हिंदी में, बिकॉज बांग्ला से ज्यादा वाकिफ थे, उनकी हिंदी फिर भी साफ थी, इससे हिंदी में काकी के का कुछ अगर गड़बड़ है ना तो ठीक कर लेना तुम, बट डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऑन द सेट। So I had all 33 stories to prepare and one go like a film. And the shooting also happened like a film. हम location wise गए थे, तो पहले हमने सब ब्योमकेश के घर के scenes किए, episode 1 से लेकर 20 तक मेरे ख्याल, and then the last 13 we did separately. So I was changing costumes left, right and center, और मेरी script पे सारे costume के notes थे। तो जब वो assistants गलती करते थे तो मेरी script आके देखते थे, क्यों मैंने सारे notes किए हुए थे। लेकिन जहां तक आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये उन कहानियों की ही खूबी थी। जो कैरेक्टर क्रिएट किया था राइटर ने, वो इस तरह का था कि उसकी जो सादगी थी, जो आम आदमी द्वारा पहुंचने की, और खुद ब खुद उसके कैरेक्टर में मुझे वो रूप धारण करना था। तो मेरी प्रिपरेशन सबसे पहले ये थी कि मुझे धोती पहनना सीखना था। आज मैं आंखें बंद करके धोती पहन सकता हूं, ओनली बिकॉज ऑफ ब्योमकेश। बट अदरवाइज इट वॉज रियली द, जो उस कैरेक्टर की जो मनोवृत्ति है, उसकी जो साइकी है, उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो मुझे अपने अंदरूनी तौर से क्रिएट करना था। एंड द डायरेक्टर्स ब्रीफ वॉज वेरी क्लियर, प्लीज कीप इट सिंपल, ही थिंक्स अहेड ऑफ हिज टाइम। बहुत क्लियर, स्पष्ट ब्रीफ थी, और यही स्पष्टता, यही सरलता, यही सादगी शायद उस ब्योमकेश का यूएसपी है। गुड इवनिंग सर। सर, हिंदी सिनेमा और रीजनल सिनेमा जो है, इनमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है, तो इस समय में एक एक्टर को एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए कितनी ज़रूरत है, या फिर लेनी चाहिए या नहीं? आपने तो 4 सवाल कर लिए। मेरे ख्याल जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने अंदर पहले टटोल के देखो कि वाकई ये प्रोफेशन आपके लिए है या नहीं। ये हुनर, ये कला को आगे बढ़ाने के लिए आप में वो मनोबल और शक्ति है या नहीं। कभी कभी उस ट्रेनिंग के द्वारा
ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। इस वजह से वो ट्रेनिंग ज़रूरी है। Yeah, I think that's the important thing really to keep in mind. You will get your own answer slowly. Yes, sir. Yes, sir. कभी अगर कोई रोल बहुत इंटेंस है जिसके लिए आपको अपना एज अ पर्सन आपको छोड़ के उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो और एक्ट करने के पहले भी आपको एक काफ़ी लंबा टाइम अपने आप को ढालना पड़ रहा है सिर्फ उस रोल के लिए, और वो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या तब आप एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं? यानी एक जो बेसिक डायलेमा हमेशा रहता है मेथड वर्सेस अडेप्टेशन, उसके लिए मुझे पूरी वर्कशॉप लेनी पड़ेगी आपके साथ। मैं आई जस्ट बी ब्रीफ। डोंट फॉरगेट वर्ड क्या है? एक्ट। अगर वो एक्ट वर्ड नहीं होता तो मतलब कुछ और ही होता। एक्ट मीन्स यू हैव टू प्रिटेंड, बट यू हैव टू मेक मी फील दैट यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, बट यू हैव टू एक्ट। You can't sit and murder somebody actually with a knife into his chest because you have to murder somebody. That is why the profession is called acting. तो कई एक्टर भूल जाते हैं कि उनको एक्टिंग करनी है। ये मेरे को अमरीश पुरी जी ने बताया था, बेटा तुम एक्टर हो, स्टंट मैन नहीं हो, ये यहाँ से कूदना वूदना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक्टर हो, अपनी बॉडी अपनी शक्ल का ख्याल रखो। मैं आज तक नहीं भूला। Yes, whoever has a mic. Yeah. Oh, there at the back. Yeah. Yes, sir. Good evening, Rajat ji. With all humility, when I say humility, the question that's coming to you is going to be a bit of a cliche or maybe a debate. I'm prepared. Right? Not a tricky one really. I want your take on this. Yes. कला जीवन के लिए है या जीवन कला के लिए? That is your perspective. ये बहुत मुश्किल सवाल है। आई थिंक ये अपने आप में ही मिला हुआ है। इट्स बोथ वेज। कला जीवन के लिए है और जीवन कला के लिए है। ये अपने आप में जो जिसको संगम और मिश्रण कहते हैं, यू कांट सेग्रीगेट द टू बिकॉज यू डोंट नो डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग। ये वो सवाल हो गया। आई डोंट हैव एन आंसर बिकॉज दे आर रिलेटेड सर। Thank you so much. Yes, young man. Hi, Rajat sir. Hello. It was my personal experience that when I read Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes. So after reading that, I was in hangover for some time, and I felt like I'm Sherlock Holmes, and I used to find reasoning in everything and everywhere. So I would like to ask whether this has happened with you after playing Vyomkesh Bakshi. मेरे साथ ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं ब्योमकेश करने के बाद। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट किसी जर्नलिस्ट ने गलती से मेरे ऑफिस का एड्रेस न्यूज़पेपर में दे दिया था, तो द काइंड ऑफ लेटर्स आई रिसीव फ्रॉम आई डोंट नो कौन से गांव से, जो कोई बोल रहा है सर आप जल्दी आइए, मेरे मामा जी ने ना हमारे पैसे हड़प के पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं। ऐसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, मैरिज प्रपोजल्स, पता नहीं क्या कुछ आता था वहाँ पे पोस्ट कार्ड्स पर। एंड सम ऑफ देम very frightening. I won't say that because there are personal things that people were sharing, and it really frightened me because they were actually believing that I exist as Vyomkesh. Some of the funny incidents were more in Calcutta, where people used to follow me when I was walking on the road. So one day I stopped at the signal and I suddenly turned around and I said, क्या बात है, क्या चाहिए आपको? कह रहा है मैं देख रहा हूँ आप कौन सा केस सॉल्व करने जा रहे हैं। So ऐसे किस्से भी होते हैं। यहाँ डिनर पे आई ओवरहर्ड somebody in a restaurant telling his wife, ये साथ में ब्योमकेश बैठे हैं, ये कुछ तहकीकात करने आए, यहाँ से तुम ज़्यादा मत बोलना, चुप करके बैठे रहो। तो these things I have experienced as a result of Vyomkesh. The most ironic thing was when I went to my own chemist down the road in Bombay, he was putting his shutter down at 8 o'clock. He's saying, आपका सीरियल आने वाला है अभी आधे घंटे में, आप जल्दी कीजिए ना, बंद कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा अजीब है यार, तुम दवाइयाँ के लिए खड़े हो, यहाँ पे तुम ब्योमकेश देखने के लिए खड़े हो। So ये किस्से मेरे साथ हुए, just to share with you. Yes, Mike.
Yes, ma'am. First of all, a very good evening, sir. Good evening to you. I don't know whether you remember or not, but around 4 years back, I have met you during a Yuva shooting in Aravali International School, Faridabad. Oh, okay. Yes. Sir, at that time I met you for the first time and I heard about you for the first time, actually, truly speaking. From that time I started thinking about this thing as well, because it struck to me that yes, this is also something that I can do. So I haven't yet started with it in a depth, but the josh is really high. Josh is high? Yes. That's good. But Keep it high. yes. But sir, the opportunities, they are not up to the mark yet. Yes. Like in Nagpur, I have seen some auditions going on. I have even given that. But they are not that up to the level that you can actually move in that. So, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, my dear. इस बात का मुझे भी रोना आता है that we don't have academically qualified institutions to teach acting. और जो थोड़ी बहुत जगहें हैं वो पैसे बनाने के जरिए हैं, where they charge you thousands or lakhs and they teach you absolutely nothing, or they teach you what you should not be doing. Sometimes that is also a learning. As I told one of the students who came from one course, so जब उसने मुझे डिटेल में बताया उन्होंने क्या किया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा सबक सीखा तुमने. अब ये सारा कुछ जो तुम्हें सीखा है इसको unlearn करो. That is the lesson that you have learned, that you have to unlearn everything, and that also is a lesson. But I would say keep trying. You won't find something up to the mark, and if you have set yourself with a high standard, which I really appreciate, then don't give up. You'll find it. If not here, look elsewhere. Not necessarily that you have to go to Delhi, Bombay. Just recently, I sent one of my workshop students from Srinagar to Chandigarh. I said, go, apne aap ko tatolo. So in a way, you have to find a platform that will help you to stretch yourself. और अपने आप को तुम्हें जब टटोलने का मौका कहीं मिले वही सही है. Where you feel you're learning something good, bad, ugly, remember, that's going to be all of it together. हाँ, तो वो कमल का फूल तुम्हें कीचड़ में ही मिलेगा. Okay, don't worry. No, nothing is yet. I don't know where the mics are going. Okay, here it is. Sorry. सर नमस्कार. सर एक पर्सनल लेवल पे एक मुझे बात हमेशा खटकती रही है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पैरेलल सिनेमा का एक पार्ट होना चाहिए. आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है. सिनेमा में सिनेमा है, ये पैरेलल रास्ता है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, मैं ये सब नहीं देखता कहाँ से जा रहा है. मेरे लिए मुझे मेरा रोल है, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, जिनके साथ मैं काम करने वाला हूँ. अगर मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी मुझे ये करना चाहिए तो मैं करूँगा. मैं ये सब नहीं देखता. Good evening. जी. There are certain games like swimming and cycling, yes, which are learned very early in the childhood. You're lucky. You're one of the lucky ones. No. The thing is that when you get old, you don't. I mean, it's difficult to learn swimming or cycling. जी. Is it the same with acting? No, I don't think so. I don't think in any profession there is a time limit for anything to learn. If the desire to learn is there, you can learn anything, sir. आप swimming की बात कर रहे हैं. My father learned swimming at the age of 43. I used to make fun of him in the pool. That's a different point. But he still learned at 43. You know, so I don't feel that personally. If you want to do it, you can do it. Ji sir. You have done one Marathi film. I have done 2 Marathi films. Yeah. Could you speak Marathi and some experience about your doing Marathi films? No, I'm not going to relate dialogues and things like that, but I think I was lucky when I did my first Marathi film that was called Limited Manuski many years ago in Pune. And I remember a lot of the actors in the Marathi fraternity in Pune were very upset with the director that they chose an actor from Bombay to do the role and did not choose somebody from Pune. So when I reached Pune, I could sense this negative atmosphere around कि ये लड़के को कहाँ से उठा के ले आए हैं. But I had a wonderful experience because they were a wonderful director and his wife, and it was a crazy, bizarre story. And then the second time was with Sonali Kulkarni. But
Gulmohar, which I have never yet seen the film. But उस बंदे ने एक हफ्ते में कैसे फिल्म कंप्लीट करी मेरे को तो मुझे तो घबराहट होती थी, because suddenly he would change the lines and I said, you know, I'm not that comfortable with Marathi. Yes, I speak Marathi on a very basic level because मेरे सारे workers कारीगर में जो मेरे यूनिट के थे जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो वो सब महाराष्ट्रन थे, so I picked up Marathi from them and I have a love for languages, so it's not difficult for me, at least I can understand. गुलमोहर, मैंने सोनाली को ऑलरेडी मैसेज किया कि मुझे एक कॉपी भेजे, मैंने देखी नहीं अभी तक. अच्छा, alright, moving on. एक follow up question to that particular sir. 99 में आपने एक फिल्म की थी अग्निसाक्षी, a Malayalam movie. Yes. And despite of being unable to speak in Malayalam, एक ट्रिविया मैं शेयर करूँगा. 69 से लेके 2019 तक, you are the only non-Malayali actor to win the Kerala State Award for Best Actor. उस फिल्म की अपनी एक कहानी है, and I'll tell you, it was one of the most fascinating experiences of my life on celluloid. And I give the full credit to the director Shyam Prasad and the cameraman, the DOP Aligappan. But I'll also share another secret that not many people know. That I would study till 3 o'clock in the morning trying to learn my Malayalam for the next day in the shoot. But finally, they got somebody else to dub for my voice. But that person also got an award for the best dubbing artist because you can't tell that it's not my voice. उसने मेरी आवाज को इतनी बारीकी से पकड़ा था. So